Hello my dear students. Hope you all are doing great. Welcome back to Archana Academy. So students, in this video we are going to start lesson 2nd of microeconomics class 11th, and the topic that we are going to start is the concept of utility. We all know who is a consumer. Consumer is a person who buys and consumes the goods and services. Now the next question is, why does he consume? The simplest answer is just to satisfy his needs. अपने needs को satisfy करने के लिए वो उन goods का consumption करता है. Now let us move to an example. If suppose a consumer is there and that consumer is moving into the market and he is buying or he is consuming two goods, ice cream and chocolate. And after consuming, if we ask from him that which thing you like more, he would be able to tell the answer कि उसे आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगी या चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगी. But if we will ask how much, कितनी ज़्यादा तुम्हें अच्छी लगी, so will he be able to give the answer? No. उसे ये तो वो बता देगा कि मुझे आइसक्रीम बेटर लगी है चॉकलेट के कंपेरेटिवली, बट कितनी ज्यादा लगी he will not be able to give the answer. So to solve this problem, or to just get the answer, our economists, they derived the concept of utility in the economics. So let us start. What is utility and all? Utility is nothing. In simplest term, we can say this is the want satisfying power of a commodity. एक commodity की want satisfying power, उसको हम क्या बोलते हैं? Utility. अब हम कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? Because we need that. हमें उस चीज की जरूरत है, तो उस चीज से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है उसको हम इकोनॉमिक्स टर्म में क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मेजर. हम इस यूटिलिटी को मेजर कैसे करें? सो देयर आर टू अप्रोचेस. फर्स्ट वन इज कार्डिनल अप्रोच and second one is ordinal approach. Two approaches are there, cardinal approach and ordinal approach. Cardinal approach says that utility can be measured in numbers. Utility को आप measure कर सकते हो और आप उसे numbers में, numbers like 10, 20, 30, आप इन numbers में numerical term में आप उनको express कर सकते हो. And reverse to this, ordinal approach says that utility can be measured but it can't be expressed in numbers. हम इनको numbers में express नहीं कर सकते. हम ये तो कह सकते हैं कि हमें इस चीज से utility मिल रही है, but that utility cannot be expressed in numbers. So जो भी हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं that are totally based on cardinal approach. आज जो हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो सारे हमारे कार्डिनल के अप्रोच के ऊपर ही बेस्ड हैं. सो यूटिलिटी, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि वांट satisfying power of a commodity is utility. Now the next term is total utility. Total utility, or the TU I have written, this is the total satisfaction obtained from the consumption of all the possible units of a commodity. एक सिंगल कमोडिटी की आप जितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, इफ वी एड द यूटिलिटी ऑफ obtained by all the units of that commodity, we will get our answer of total utility. Like suppose you are consuming 3 units of ice cream. आपने आइसक्रीम की 3 यूनिट्स ली है, सो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? Utility from the first unit of the ice cream plus utility of the second unit of the ice cream plus utility of the third unit of the ice cream. और जब किसी एक सिंगल कमोडिटी से सिंगल कमोडिटी की अलग अलग यूनिट्स को जब आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उनसे मिलने वाली यूटिलिटीज को जब आप प्लस कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, सो वी विल गेट आवर आंसर ऑफ टोटल यूटिलिटी. Simple.
I have written this TUN, n is the number. Utility of the first unit derived from the first, from second, from third, क्योंकि यहाँ पे n है, ठीक है, तो it will move up to n. Now the next concept is marginal utility or MU. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी है that the marginal word stands for additional. So MU, marginal utility. So let us first read the definition. This is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity. एक commodity आप consume कर रहे हैं, ठीक है, अब आपने उसकी फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया, फाइन. नाउ इफ यू आर मूविंग टू द सेकेंड यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, तो सेकेंड क्योंकि आपने एक और यूनिट उसकी कंज्यूम करी है उस कमोडिटी की, तो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के साथ ही आपको कितने एडिशनल यूनिट ऑफ यूटिलिटी मिली है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. एक बार फिर से हम डेफिनेशन को रीड करते हैं. एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड from the consumption of one more unit of the given commodity. एक given commodity की अगर हम एक और यूनिट को कंज्यूम करें तो हमें उस जो हमने सेकेंड जो यूनिट कंज्यूम करी है उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ सी द फॉर्मूला हाउ वी डिराइव मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी एंड अगेन इज द नंबर TU total utility n minus TU n minus 1. अब ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय अ टेबल. जैसे हमने अपने एग्जांपल में लिया दैट वी आर टेकिंग यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम. So let us suppose we are taking 4 units. So I am writing units. Here total utility and here is marginal utility. Units first, second, third and fourth. Total utility we are getting 20, then 36. Let us suppose we are taking this and then 50. Fine. Now the thing is how we get the answer of MU. When we consume first unit, we are getting TU 20. Fine. MU in that case will be same क्योंकि first unit है, TU भी same रहेगा. MU again it will be 20. Now जैसे हमने second unit consume की है, अब TU तो हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर है क्योंकि हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस सेकेंड यूनिट से भी तो हमें यूटिलिटी मिलेगी. तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो हम लेट अस सपोज कि हमें मिल रही है 36 TU. अब हाउ वी विल टेक दिस MU, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, TUN माइनस TUN माइनस 1. n माइनस 1 मीन्स आपकी इससे प्रीवियस वन वाली. TUN n इस केस में हमारा सेकेंड हो जाएगा. ये फॉर्मूला यहां लिख लेती हूं. n माइनस 1, n यहाँ पे हमारा सेकेंड है. टोटल यूटिलिटी n 2 और 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1. तो कैसे निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे ये MU है. सेकेंड की 36 माइनस 20, so the answer will be 16. So MU in this case will remain 16. Now थर्ड यूनिट को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं उस केस में TU is 46. So how we will derive MU, हम उस केस में MU कैसे करेंगे, थोड़ा सा अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3. टोटल यूटिलिटी n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 माइनस 1 सेकेंड. तो MU हमें फाइंड आउट करना है. थर्ड यूनिट कितनी है, 46 TU.
और 46 सेकेंड वाले की 36, सो द आंसर विल बी 10. ठीक है, अब 4th यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, टीयू तो हमारा बढ़ता ही जाएगा, ये 50 तक पहुंच गया है. ठीक है, एमयू कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, 50 माइनस 46, सो आवर आंसर विल बी 4. सो हमने यहाँ पे इस क्या किया है, एमयू, हाउ वी फाइंड आउट एमयू, कि एक एडिशनल यूनिट को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, वन मोर यूनिट हम जब कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमको एडिशनल कितनी यूटिलिटी मिल रही है. सो दैट विल बी द एग्जाम, दैट विल बी द आंसर ऑफ एमयू. आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट इट कि यूटिलिटी आपकी क्या होती है, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, हाउ वी विल फाइंड टीयू, एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी. और इस टेबल से आपको क्लियर हो गया कि एमयू होता क्या है और कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं. In the next video, we will derive the relationship between TU and MU. TU और MU के बीच में relationship क्या होता है, वो next video में हम देखेंगे. Those who have not subscribed my channel yet, subscribe it so that you will get the notification और आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो. नाउ सी, जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं बिटवीन दिस टीयू एंड एमयू, related to graph also we will do, तो that is the most important topic और एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. So do not forget to watch that video also and subscribe my channel, watch my videos, like it, share it with your friends. Thank you very much.